خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں ایک بار پھر آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خدا کا زندہ کلام لے کر۔ عزیزو، آج سپہر خدا کا زندہ کلام جس پر میں بولنا چاہتا ہوں وہ یسوع مسیح کی مشہور تمثیل ہے۔ یسوع مسیح کی تقریباً 40 سے زائد تمثیلیں ہیں جن سے مسیحی اور غیر مسیحی تقریباً تمام اقوام واقف ہیں، اور آج جس تمثیل کے تعلق سے میں خدا کے کلام کو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ مشہور تمثیل ہے، اور مسیحی اور غیر مسیحی حلقوں میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ خدا یسوع مسیح کی تمثیل نیک سامری کی تمثیل ہے جو لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں بیان ہے، جس کا میں اس کی 25 آیت سے پڑھنا چاہوں گا 10ویں باب کی لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں۔ اور دیکھو، ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا۔ میں چاہوں گا میرے ساتھ رہیے گا اور لفظوں پر غور کیجئے گا۔ یہاں پر لکھا ہے اس کی آزمائش کرنے لگا۔ It was an temptation کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب وہ اپنا جواب پیش کرتا ہے تو اس کے جواب میں وہ ایک اور سوال کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو نے ٹھیک جواب دیا۔ تماثیل جو یسوع مسیح نے کہیں وہ تقریباً تمام دنیا میں ہر طرح کے مکتبہ فکر کے لوگوں میں بڑی مشہور ہیں، اور ان کے ذریعے سے یسوع مسیح نے آنے والی زندگی کے تعلق سے ہمیں سمجھایا، دکھایا۔ اور یہ جو نیک سامری کی تمثیل ہے، جب اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں، جب اس کے بارے میں بات شروع کی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ایک تصور سا سننے والوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، ابھرتا ہے، یعنی رحم، نیکی اور ترس کا تصور، کہ نیک سامری سے مراد رحم اور تصور کی تعلیم ہے۔ اب یہ جو عالم شرع یسوع مسیح کے پاس آیا، یہ شرع کا بہت بڑا عالم تھا۔ لکھا ہے عالم شرع یسوع مسیح کی آزمائش کرنے لگا۔ یسوع مسیح جہاں بھی جاتا تھا لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو ان میں زیادہ تر سننے والوں کے ساتھ زیادہ تر آزمائش کرنے والے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ اب اس نے بظاہر بڑا سادہ سوال کیا ہے، اور سننے والے بھی بڑے یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا جواب دیتا ہے۔ وہ بظاہر سادہ سوال ہے لیکن وہ شریعت کے اندر موجود ہے، اور جو سوال اس نے کیا اس کے جواب کے اندر تمام شریعت کا خلاصہ پایا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس کے سوال کے جواب میں اس سے پوچھا کہ تو شریعت میں کس طرح سے پڑھتا ہے؟ اس نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے 2 طرح کی حوالے ملا کر اس نے بیان کیے۔ سب سے پہلے تو وہ یسوع مسیح کی آزمائش کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد وہ یہ بھی بتانا چاہتا تھا ارد گرد کے لوگوں کو، سننے والوں کو بھی، کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، یا شاید میں یسوع مسیح سے کچھ زیادہ علم، نالج رکھتا ہوں۔ تو جب یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح سے پڑھتا ہے، کلام میں کیا لکھا ہے اس سوال کے بارے میں، تو اس نے 2 حوالے، احبار کی کتاب میں سے اور استثناء کی کتاب میں سے، احبار 6 باب اس کی 4-5 آیت میں سے، اور استثناء 19 باب اس کی 18 آیت میں سے اس نے 2 حوالے بیان کیے، دونوں کو ملا کر۔ ایک یہ کہ خدا سے محبت کر، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور یقین آپ لوگ خدا کے یسوع مسیح کے تعلیمات سے واقف ہیں، اور پرانے عہد نامے میں جو موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی اس میں 10 احکام سے واقف ہیں، اور 10 احکام کا جو خلاصہ ہے اگر آپ پڑھیں، غور کریں،
तो पहले 5 अहकाम खुदा के ताल्लुक से हैं और आखिरी 5 अहकाम जो 10 में से वो इंसान के ताल्लुक से हैं। उसमें माँ बाप भी शामिल हैं, आपके पड़ोसी भी शामिल हैं। तो सारी शरीयत का खुलासा इसी में है कि खुदा से मोहब्बत रख और इसकी मानिंद ये कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। अब उसने बड़ा अक्लमंदाना जवाब दिया उसने 2 हवालों को, क्योंकि वो शरअ का आलम था, वो ऑलरेडी जानता था। और जैसे हमने 25 आयत में पढ़ा है कि वो यीशु मसीह की आजमाइश करने के ताल्लुक से पूछता है, वो सीखने के लिए नहीं पूछता। अजीजों, आज भी बहुत से लोग खुदा के खादमों से बहुत सी चीजें सीखने के लिए कम और आजमाइश करने के लिए पूछते ज्यादा हैं। यीशु मसीह ने उसे पूछा कि तू कैसे पढ़ता है। उसने बताया कि मैं कलाम में इस तरह से पढ़ता हूं, शरीयत में यह लिखा है कि खुदा से मोहब्बत रख, इसकी मानिंद ये कर। अब जब उसने ये कहा तो यीशु मसीह ने कुछ उस पर बहस नहीं की, सिंपली यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक जवाब दिया। अब उस शख्स ने देखा कि ये यीशु मसीह ने बिल्कुल मुझे वहां पे लाकर लाजवाब कर दिया, तो एक और सवाल उसने फेंका, तो फिर मेरा पड़ोसी कौन है कि किसी तौर से वो मुझे कोई ऐसा जवाब दे और हम उस पर अटैक कर सकें, उसको फंसा सकें किसी तौर से अपने सवालों के अंदर, क्योंकि वो आलम है। तो यीशु मसीह ने उसके जवाब में अब उसे एक तमसील सुनाई नेक सामरी की, कि एक शख्स यरूशलेम से यरीहो की मानिंद जा रहा था, यरीहो की जानिब जा रहा था और रास्ते में डाकुओं में घिर गया। सबसे पहले तो यह कि यरूशलेम से जो यरीहो का रास्ता है वो आज भी सुनने में आता है कि वो बहुत खतरनाक रास्ता है। ट्रैवलर्स अवॉइड करते हैं खास औकात में वहां से गुजरने से, रात के वक्त खास तौर से लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि आज भी लोग वहां पर लूट लेते हैं और वो बड़ा खतरनाक। और यीशु मसीह ने एक ऐसी जगह का चुनाव किया कि जो उस दौर के मुताबिक लोग एक दफा मुतवज्जे हों कि ये किस इलाके की बात कर रहा है, किस रास्ते की बात कर रहा है, और उसने उस रास्ते का बयान किया और उसने बताया कि वहां पर उसे लूटा गया, मारा गया, अधमुआ छोड़ दिया गया। अब एक शरअ का आलम, एक प्रीस्ट वहां से गुजरा, फिर एक लावी वहां से गुजरा और इसी तौर से एक और शख्स वहां से गुजरा। अब मैं इस तमसील की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं। अजीजों, ये तमसील बहुत मर्तबा गलत भी समझी जाती है, मतलब इसका जो मफहूम है वो गलत समझा जाता है, गलत लिया जाता है, किसी और एंगल से ले लिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने किस एंगल से ये समझाने की कोशिश की हमें, इसके 2 तरह से ये इलस्ट्रेशन जो यीशु मसीह ने बयान की कहानी, ये 2 तरह से, एक जिस्मानी तौर से हमारे ऊपर अप्लाई होती है, एक हमारी जिम्मेदारी पर हमारे ऊपर अप्लाई होती है, और एक रूहानी तौर से ये अप्लाई होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूहानी तौर पर इसका यीशु मसीह ने क्या निचोड़ बयान किया। ओरिजिन इस तमसील को बयान करता है कि ये रूहानी तौर पर जो तमसील है आदम का इस दुनिया से खुदा की बादशाही तक का सफर है। जैसे वो आदमी जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जाता है, वो आदम को जाहिर करता है जो इस दुनिया में पैदा हुआ और यरूशलेम से निकला, यानी खुदा की बादशाही से, खुदा के बाग से निकल गया और यरीहो की जानिब जा रहा है, दुनिया में जा रहा है, और रास्ते में डाकुओं में घिर गया, यानी आजमाइश में और गुनाह में घिर गया, जिसने उसे अधमुआ कर दिया। फिर इसके बाद देखते हैं कि एक काहिन वहां से गुजरता है। कहानत जो है शरीयत को जाहिर करती है कि उस शख्स ने, आज के दुख में दबे हुए, गुनाह के अंदर दबे हुए इंसान ने अपने तौर से शरीयत के वसीले से निजात को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन शरीयत भी उसकी मदद ना कर सकी। फिर हम देखते हैं कि एक लावी सामने आता है उस शख्स की जिंदगी में। लावी जो हैं ये नबियों को जाहिर करते हैं, नबियों की तालीमात को जाहिर करते हैं, लेकिन ये भी इंसान को नजात नहीं दे सकती। फिर हम देखते हैं कि एक सामरी ज्यादातर लावियों और काहिनों के दरमियान ये रद्द किए हुए लोग थे, लेकिन यहां पर ये जो सामरी है ये यीशु मसीह की मसील है, जैसे लावियों ने, कहानत ने और शरीयत ने और नबियों ने और बहुत से लोगों ने रद्द कर दिया। उस वक्त के लोगों ने, उसके अपनों ने उसे रद्द कर दिया। लेकिन वो शख्स आया और उसने उस इंसान के जख्मों को देखा,
यहां उसके जख्म जो हैं उसकी नाफरमानी को जाहिर करते हैं, हमारी नाफरमानियों को। हम अपनी रूह को, खुदा के रूह को रंजीदा करके अपनी रूह को जख्मी और छलनी कर देते हैं। उसने इंसान की छलनी रूह को देखा, जख्मों से रिश्ती रूह को देखा, और उसने उस पर मैं और तेल को उंडेला। अब जानते हैं कि मैं उस दौर में बड़ा कीमती एक सरमाया समझा, बड़े खास खास किस्म के मौकों पर बादशाहों और उमरा के लिए इस्तेमाल होती थी, और उसको जाया करना, उसने लिखा है उसने अपनी मैं को उस पर उंडेला। मैं एक बड़ा कीमती मशरूब था, यहां यीशु मसीह का कीमती खून है जो उसने हमारे जख्मों पर उंडेल कर उन्हें धोया, और रूह के मसा से, रूह के तेल से उसने हमारी शिफा का बंदोबस्त किया। और उसने उस पर तेल को उंडेला, तेल लगाया, मैं को उंडेला, अपना बदन, अपना लहू दे दिया, और लिखा है कि अपने जानवर पर, उसने अपने जानवर पर उसको, यह जानवर कोई भी हो सकता था, गधा हो सकता था, घोड़ा हो सकता था, कुछ भी, लेकिन अपने जानवर पर उसने उसको उठा लिया, जैसे यीशु मसीह ने अपना बदन हमारे लिए दे दिया और अपने बदन पर हमारे गुनाहों का बोझ उठा लिया, और वो उसको लेकर चला, और फिर वो उसको एक सराय में ले गया। आप जानते हैं यहां रूहानी तौर पर सराय जो है कलीसिया की मसील है। बहुत से लोग हमें कलीसियाओं में ले तो जाते हैं, बहुत से लोग कलीसियाओं के रहनुमा तो बने हुए हैं, लेकिन क्या वो सही तौर से बीमार इंसान की, बीमार रूह की, गुनाह में दबे हुए इंसान की वो सही तौर से कर रहे हैं तीमारदारी, या जिस तौर से यीशु मसीह ने कहा? और उसने वहां पर लिखा है कि उसके लिए 2 दिनार पेश किए। उस वक्त की बहुत खतीर रकम, बहुत बड़ी रकम उसने पेश की, और उसने उस सराय के मालिक से कहा कि इसका ख्याल रखना। यीशु मसीह आज भी सराय के मालिकों से, जो चर्चिस को चला रहे हैं, जो लीडर बने हुए हैं, जो महज अपनी दिखावे के लिए, अपनी नमूद के लिए, अपने गेन के लिए, अपनी नुमाई के लिए कलीसियाओं को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, वो ये भूल चुके हैं कि यीशु मसीह एक वक्त में आएगा और उनसे हिसाब लेगा। उसने 2 दिनार निकाले, भटियारे को दिए, उसे कहा कि इसका ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगा। वापस से क्या मुराद है? यीशु मसीह की आमद सानी। उसे कहा मैं वापस आऊंगा और मैं तुझसे हिसाब लूंगा। आज बहुत से सराय के मालिक जो हैं, उसी सराय के मालिक की तरह क्या उसका ख्याल रख रहे हैं? क्या कलीसिया का ख्याल रखा जा रहा है? उसने बड़ा वाज़ेह तौर से यह कह दिया है कि मैं वापस आऊंगा। जैसे उस नेक सामरी ने उससे कहा कि इसका ख्याल रख और मैं वापस आऊंगा और मैं तुझसे हिसाब लूंगा। बाकी जो कुछ खर्च हुआ मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। ये उसकी जेनरोसिटी है, ये उसका तरस है, ये उसका कंपैशन है। उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी और उसने उससे कहा कि इसका ख्याल रखना रूहानी तौर पर। खैर ये रूहानी तौर पर है। मैं दोबारा वापस इस तमसील की तरफ आता हूं कि इस तमसील के अंदर जो खास पॉइंट है वो उन चरवाहों और कलीसिया के उन लीडरों के लिए है जो चर्चिस को तो चला रहे हैं लेकिन कलीसिया को परागंदा कर रहे हैं। अजीजों, आज हमें और कलीसिया के लीडरों को, कलीसिया के खादमों को ये सोचने की जरूरत है और अपने आप से ये सवाल करने की जरूरत है कि जैसे उस जख्मी आदमी को, उस जख्मी शख्स को उस काहिन ने भी देखा, उस लावी ने भी देखा, उस सामरी ने भी देखा। शायद काहिन ने देखा होगा, ओ ये तो एक लाश है, ये मरा हुआ है, मैं इसके पास गया मैं नापाक हो जाऊंगा। मुझे तो जरूर है कि हैकल में जाने से 24 घंटे पहले पाक होने की जरूरत है, पाक रहने की जरूरत है, मैं इसको नहीं छू सकता। अपने अपने लोगों ने तोजीहात पेश करना शुरू कर दी। लेकिन जो उसके बाद यीशु मसीह ने यहां एक नेक सामरी की तमसील की, ये शख्स अच्छा है, ये नेकी से नेकी करना जानता है, उसने यीशु मसीह को पेश किया। अजीजों, आज अगर हम दुखी इंसानियत को देख रहे हैं, अगर दुखी इंसानियत के पास से गुजरते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे पड़ोसी सिर्फ वही हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। हर वो शख्स जिससे हमारा किसी ना किसी तौर से राब्ता है,
چاہے وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے، چاہے ہمارے محلے میں رہتا ہے، یا کسی طور سے ہماری کبھی نہ کبھی اس سے واقفیت رہی، ہر وہ شخص ہمارا پڑوسی ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طور سے برتاؤ کرنا ہے، آج ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی تو اس کا کیا ہوگا، یہ نہیں بلکہ یہ کہ اگر ہم نے آج اس دکھی انسانیت کی مدد نہ کی تو ہمارا کیا ہوگا، اس کو چھوڑ دیں، ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ اس نیک سامری نے اس بھٹیارے والے سے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا، اس کا خیال رکھ، میں تجھے انف رقم دے کر جا رہا ہوں، جو کچھ اور خرچ ہوا میں آ کر تجھے پے کروں گا، لیکن اس کا خیال رکھنا۔ آج کلیسیا کے لیڈروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے کلیسیا ہماری ذمہ داری لگائی ہے اور وہ جلد آنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا نہیں اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی، بلکہ اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی تو ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ ایک آ رہا ہے جو ہم سے پوچھنے والا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنے کا فضل بخشے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔